This is free science dialogue series. Purpose is to disseminate knowledge of biology, different streams of biology. And we have today's speaker. I'm allowing participants. Participants are still joining. So today's speaker is Dr. Bhargav Patel. We all are alumni of Gujarat University. He did his MSc PhD from Gujarat University, and he is nowadays HOD in National Forensic Institute University, Gandhinagar. He is HOD of DNA forensics. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes. And he is also frequently publisher in this topic, forensic science, and he is also very vocal about this forensic science. And he is also trying the most means more and more students should join forensic science because crimes rates are increasing. There are so many paternal disputes are going on, so more scientists are required. And government of India is also starting so many institutions related to forensic. So we will listen him. Welcome Dr. Bhargav Patel ji for freely disseminating knowledge under the Science Dialogue series. And I welcome you, heartily welcome you for giving time in addition to your regular time. So we always appreciate the scientists and researchers who give extra time for our scholars, our student, so that our all knowledge pool will improve. That is purpose. I'm also devoting time, and our speakers are also devoting time without expectation of any, you can say, money or anything. This is all free. I request all the participants to attend complete lecture, and also you fill the feedback form. If you need this, sometimes some researchers need some certificate, so I will give you e-certificate also, but you have to attend complete lecture and you have to fill feedback Google form also. And I request you all to join my social sites like LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, so that in future you will come to know about our activities. We are organizing so many free webinars, quizzes, sometimes paid courses also, but fee is very less. Most of you are aware of about my courses. If some of you are not aware, for them this is noticed. So welcome you again, Bhargav ji. Now dais is yours, है ना? Platform is yours. Thank you so much for your nice introduction. Gopal ji is just like my adult brother, and बस उन्होंने जब मुझे बोला कि ऐसा कुछ करना है, तो then it was a great thing that this kind of seminars are being arranged, and because this kind of platform where nothing is agenda, right? The only agenda is कि भी student को proper मतलब guidance मिले, मार्गदर्शन मिले, और उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो जहां पे खड़े हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, so that should be a proper guidance, and that guidance should come from a person who is already उस पाथ पे वो चले हैं, तो फिर वो बहुत मजा आता है. तो it is really a very nice thing for me to interact with all of you. मेरे लिए बहुत ही एकदम I was excited सुबह से कि भी चलो आज शाम को एक ऐसा लेक्चर होने वाला है कि जिसमें मैं यंग माइंड के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करने वाला हूँ फोरेंसिक साइंस के बारे में. And you all are welcome to ask questions. Yeah, sure, definitely. Anytime you can ask the questions in between also, and even after my session is completed, उसके बाद भी आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे अगर नहीं पूछना है तो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल, हमारी ईमेल एड्रेसेस है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं. मेरा मोबाइल नंबर भी मैं शेयर करूंगा, उस पर भी आप फोन कर सकते हैं. कभी भी इवन आप गांधीनगर में आते हैं तो मेरी इंस्टीट्यूट में आके आप हमें मिल भी सकते हैं. So you are most welcome to contact in any way to me anytime. So I think let us start with this. तो मैं मेरी PPT जो मैंने प्रिपेयर की है वो मैं शेयर कर रहा हूँ. हो रहा है ना शेयर नीचे Google? हाँ, sure, I'll share that. Just a minute.
नीचे है प्रेजेंट हाँ नाउ। हाँ, got it, got it, got हो it. रहा है। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा, हाँ अब आ रहा है, आ गया। आ गया ना? Yes. ठीक है, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं। राइट, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू to this unique science dialogue series, and I am really excited to be part of this science dialogue series. हमारा आज का जो टॉपिक है, it is the science of justice, exploring forensic career avenues for science graduate. तो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस जो करने वाले हैं, उसमें फोरेंसिक साइंस एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जो हमेशा सबके लिए एक मिस्ट्री रहा है। सब लगता है कि ये फील्ड में मतलब एकदम एडवेंचरस फील्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली साइंस में अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में कैरियर बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ कैरियर इन दिस, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी डन, एंड आपको कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दिस स्लाइड आई हैव मेड इट वेरी पर्टिकुलरली ये जानने के लिए कि इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं। पहली बात, पहला जो फोटोग्राफ है यहाँ पे, यू कैन सी, आई होप माय पॉइंटर इज विजिबल। गोपाल जी दिख रहा है ना मेरा पॉइंटर? नहीं, पॉइंटर नहीं दिख रहा है आपका। अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द लेजर। ये दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। हाँ, अब ये देखेंगे कि ये जो है this particular group of people, anybody knows who is this? Who is he? ये कौन है? कोई भी? पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के फाउंडर। Yes, very nice, great. और ये कौन है? ये कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा। और ये है पुलिस फोर्स का एक ऑफिसर, राइट। ये बस स्कीमेटिक है और इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो आ जाती है, उसके बाद जितने भी पुलिस फोर्सेस है वो सब आ जाते हैं। तो ये है एक एंटरप्रेन्योर, ये है साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड एम्प्लॉइज, ये है एक बंदा आर्मी का जिसने अपनी जान दी देश के लिए, राइट। सॉरी, नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो है कंप्यूटर फील्ड में, राइट, इनकी सैलरी होती है 20 to 60 lakhs पर ईयर। ये जो बंदा है वो मोस्टली 20 to 30 crores पर ईयर लेंसकार्ट का मालिक है, वो जो कमाता है। ये जो बंदा था आर्मी ऑफिसर थे, वो कैप्टन की रैंक में थे। तो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट उनका जो टोटल जो सैलरी था वो इतना था। और ये है जो पुलिस ऑफिसर्स, मतलब आईपीएस को छोड़ के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी यहाँ तक होती है मैक्सिमम। नहीं, थोड़ा इसमें करेक्शन, 2 लाख पर ईयर नहीं होगा पुलिस का, किसी का 2 लाख पर मंथ, ये 2 लाख पर मंथ है। सॉरी हाँ, और ये हाँ, ये करेक्शन है, यू आर राइट। और ये 2 लाख पर मंथ है। नीचे वाली जो सैलरी है वो 2 लाख पर मंथ है, राइट। ऊपर की जो सैलरी है दैट इज फॉर एनएम, या दैट इज अ करेक्शन। थैंक यू गोपाल जी। अब ये बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो बात आपके लिए अलग है। एक्चुअली सोसाइटी में कि यू आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन योर सैलरी, कि आपकी सैलरी क्या है उसके हिसाब से इंसान की कीमत होगी। बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं है, राइट। कि मतलब एज अ पर्सन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड आपका स्किल सेट क्या है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपके हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और एक्चुअली आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन सैलरी, राइट। सो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, राइट। आर यू अ पर्सन हु इज रनिंग आफ्टर मनी, देन डेफिनेटली यू शुड चूज योर पाथ अकॉर्डिंगली। अगर आप सही में इंटरेस्टेड है कि नहीं, आई वांट टू सर्व द कंट्री,
I want to be in the police force, I want to be in that particular law enforcement agencies as a part, then and then only you are most welcome to the forensic fraternity, right? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो फील्ड है वो आपको, आप जो चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी भी मतलब इतनी ज्यादा हो जाए, उतनी नहीं होगी, राइट? बट यस, इट विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन, द एडवेंचर, और आपको एक मतलब यू कैन कंपेयर दिस विद द मनी कि जो आपको मिलेगा, राइट? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट? देन नाउ ओवरव्यू ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस बेसिकली है क्या? तो फोरेंसिक साइंस इज अ फ्यूजन ऑफ ऑल द साइंस। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बायोलॉजिकल साइंसेस और different sciences in bio, then similarly forensic science is basically a amalgamation of all the science. And which sciences? These are the basic 4 science which are basically applied in forensic science. अगर आप देखेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स क्यों जरूरी है फोरेंसिक साइंस में? तो आप देखेंगे कि उसके टूल मार्क एग्जामिनेशन, बैलिस्टिक्स मतलब गन्स, जितने भी वेपन्स है जिससे मतलब आदमी को गोली से मारा जाता है, तो गोली बहुत सारे वेपन से निकलती है, तो उसका पूरा जो एग्जामिनेशन फील्ड है उसे बैलिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद है फिंगरप्रिंट। तो हमारी जो फिंगरप्रिंट होती है, उस फिंगरप्रिंट के एनालिसिस का एक पूरा डिटेल साइंस है, बट उसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो कौन सा है? फिजिक्स है। सिमिलरली हेयर एंड फाइबर एनालिसिस, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स है, हमें पता है कि बस हेयर तो हेयर होते हैं, लेकिन हेयर का फोरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो पूरा एनालिसिस है, उसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो फिजिक्स है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या तो पढ़ रहे हैं। सिमिलरली एलिमेंटल प्रोफाइलिंग, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी फ्लोरोसेंस एनालिसिस करना है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का एनालिसिस करना है, तो वो आइदर ऑन द फिजिक्स साइड आता है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स साइड, या तो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री साइड, राइट? वैसे आपका दूसरा साइंस है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में केमिकल एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, नार्कोटिक्स। आपको पता है कि हर वीक एक न एक न्यूज होती है कि इस बॉर्डर से इतना ड्रग्स पकड़ा गया, यहाँ से इतना ड्रग्स पकड़ा गया। सो दैट ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स में आजकल इतने टाइप्स के ड्रग्स आ रहे हैं, यू वोंट बिलीव कि इतने सिंथेटिक ड्रग आ रहे हैं, इतने मतलब it is very difficult to catch them also. So science is advancing in that way. So doping substances, आपको पता है ना कि ओलंपिक्स में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनका डोप टेस्ट होता है कि उनके बॉडी में वैसे तो सब्सटेंस नहीं है कि जो उनकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो केमिकली, तो वो सारा जो टेस्टिंग है वो पूरा केमिस्ट्री के अंदर आता है। और सिमिलरली जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर साइंस जरूरी है, दैट इज केमिस्ट्री। सिमिलरली इन बायोलॉजी, सीरोलॉजी, तो आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा है, राइट? काफी सारे लोगों ने बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें सीरोलॉजी आता है, ब्लड ग्रुपिंग है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस है, तो उसका एप्लीकेशन फोरेंसिक साइंस में काफी है। बॉटनिकल एनालिसिस, जैसे आपको पता है कि स्पोर एनालिसिस, जैसे पोलन ग्रेन्स आते हैं, लीव्स का एनालिसिस, जैसे पॉइजन के एनालिसिस होता है, तो बॉटनी के ऐसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल पॉइजन्स है प्लांट से जो मिलते हैं, तो उसका जो एनालिसिस होता है वो बॉटनिकल एनालिसिस में आता है, राइट? सिमिलरली बॉडी फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली ये सीमेन है, सलाइवा है, ब्लड है, वेजाइनल सिक्रेशन है, वेजाइनल फ्लूइड है, वेजाइनल ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ये फीकल मटेरियल है या ह्यूमन का फीकल मटेरियल है या किसका है? तो ये बहुत सारे सवाल फोरेंसिक्स में होते हैं जिसका आंसर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री से और बायोलॉजिकल साइंस से होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत बड़ा फील्ड बायोलॉजी का, कि जिसमें फोरेंसिक साइंस बहुत डिपेंडेंट है, और डीएनए एविडेंस को गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है फोरेंसिक साइंस में, तो उसका पूरा जो विज्ञान है दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। डीएनए बारकोडिंग, जैसे स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन होता है कि वेदर इट इज अ लायन, वेदर इट इज अ टाइगर, वेदर इट इज अ लेपर्ड, तो अगर कहीं से आपको एक हल्का सा दांत मिल गया या छोटी सी बोन मिल गई, तो उससे कैसे पता चलेगा कि ये बोन टाइगर का है या लेपर्ड का है या किसका है?
तो वी नो दैट डीएनए बारकोडिंग इज अ टेक्निक बाय व्हिच वी कैन डू दैट। तो उसके लिए पूरा जो बैकग्राउंड आपको चाहिए वो कौन सा चाहिए? बायोलॉजी। अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी है, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा लास्ट में कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी इसमें काम करता है। फॉरेंसिक जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स तो वी नो दैट इतना बड़ा फील्ड हो चुका है आजकल, और अभी भी थोड़े दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10,000 जीनोम इंडिया के कंप्लीट हो गए उसका अनाउंसमेंट किया। उसके बाद तो मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर द डिस्कवरी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड वैसे फॉरेंसिक साइंस को भी वैसे इतने सारे जीनोम्स की जरूरत थी, तो दैट इज आल्सो नाउ फुलफिल्ड। तो डीएनए एनालिसिस इज बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। सिमिलरली मैथमेटिक्स, तो आपको पता होगा कि जैसे ही जब मतलब कोई भी वुंड होता है हमारी बॉडी में तो एक ब्लड निकलता है। अब जब ब्लड निकलता है ना तो उसकी स्प्लैटर होती है, तो जब वो फैलता है ब्लड तो उस ब्लड के जो छींटे पड़ते हैं ना, उस छींटे का शेप कैसा है, उसमें कितने छींटे हो रहे हैं, उसके बेस पे ब्लड का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वेपन को मारा गया था, वो पूरा ट्रिगोनोमेट्री से पता कर सकते हैं। तो उसका बेसिक जो साइंस है ना मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर साइंस कंप्लीटली डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। डिजिटल एनालिसिस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंसेस है वो पूरा, अभी तो आपको पता है कि सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसका पूरा डेटा, ड्रोन फोरेंसिक्स, there are lots of analysis which can be done by this. साइबर क्राइम, आपको पता है कि कितने क्राइम साइबर रिलेटेड हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई वीडियो कॉल कर रहा है आपको, डीप फेक, आपको पता है ना डीप फेक, एक ऐसी मतलब कोई फ्रेंड ही आपको कॉल रहा है, आपको लगेगा कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं होता है। वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली मतलब मल्टीमीडिया का एनालिसिस मतलब यूज करके उस इमेज को बदला होता है और आपसे बात करते हैं, उन्हीं की आवाज में बात करते हैं। आपको लगेगा कि वही है, आपसे मांगेगा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, फटाफट मुझे भेज, और नंबर भी सिमिलर टाइप का दिखेगा। बट ये सारे साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम होती है, तो वो भी पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल आपके जितने भी गैजेट्स है वो आप मोबाइल फोन से चलाते हैं, आपका गीजर ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपकी एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप घर पे चाहो तो आपकी जितने भी स्विचेस है, तो वो पूरा जो लॉग है, किसने स्विच बंद की थी, किसने स्विच चालू की थी, किसके मोबाइल से की थी, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत जरूरी होती है। एंड ये जो सारा एनालिसिस है उसके पीछे के 4 बेसिक साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इसलिए अगर आप ये साइंस पढ़ रहे हो तो फॉरेंसिक साइंस आपके लिए इजी बन जाता है। एंड अगर आप सीरियसली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम सैंपल को एनालिसिस करने में सीरियसली इंटरेस्टेड है, देन फॉरेंसिक साइंस इज द बेस्ट फील्ड फॉर यू, राइट। अब देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंस में वर्किंग प्रोफाइल्स क्या क्या होती है, राइट। तो फॉरेंसिक साइंस में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है, वो एक स्कीमेटिक लिस्ट है, इससे अलावा भी कुछ कुछ होते हैं स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये जनरल है। फर्स्ट समझ लीजिए कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो क्राइम सीन पे जाता है, बेसिकली ये जो काम होता है वो पुलिस का होता है, कि जैसे कहीं पे मर्डर हुआ, कहीं पे बर्गलरी हुई, किसी ने किसी की चेन स्नैचिंग की, अगर कहीं पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां पे क्राइम हुआ है, मतलब आगे अब देखते हैं ना डेली न्यूज़पेपर में आता है कि एक्टिवा चालक को मार दिया, ये 2 लोगों को ऐसे मार दिया, ये मतलब डंपर ने इसको हिट किया, तो जो हिट एंड रन वाले केस पहुंचती है। लेकिन अभी आजकल क्या ट्रेंड शुरू हुआ है कि पुलिस भी अपने फोर्स में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को रिक्रूट करती है, कि जिसने एमएससी फॉरेंसिक साइंस का प्रोग्राम किया है, जिसने एमएससी मल्टीमीडिया का प्रोग्राम किया है, उन लोगों को वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 250 लोगों को रिक्रूट किया, पंजाब पुलिस ने किया, कर्नाटक पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, गुजरात पुलिस अभी करने वाली है थोड़े ही टाइम में। अभी शायद आपने पीएसआई और एएसआई की भर्ती हुई थी, तो उसमें अभी नया रूल ये आया है कि ये फॉरेंसिक साइंस के कोर्स करने वाले को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उस पर्टिकुलर। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में आए। अभी एक इंफॉर्मेशन निकली है तो मैं आपको बता दूं, अगर शायद आपको पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने अभी 3 नए कायदे बदले हैं। जो पहले इंडियन पिनल कोड था उसको बदल के उन्होंने उसको भारतीय साक्ष्य संहिता
भारतीय अपराध संहिता और भारतीय, ऐसे 3 लॉ पूरे चेंज किए हैं। जो पिनल कोड जो ब्रिटिश टाइम के थे वो सारे चेंज करके उसको कंप्लीटली इंडियन ओरिएंटेड किया है, और उसको इतना एडवांस किया है कि उसमें फॉरेंसिक साइंस को हर जगह पे रखा है। एंड नाउ फॉरेंसिक साइंस इज द मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर जितने भी क्राइम 7 साल की सजा जिसमें प्रावधान है, जिसमें उसमें फॉरेंसिक साइंस को बहुत ही मतलब कंपलसरी, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की विजिट कंपलसरी कर दी गई है। इसका मतलब पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है जहां पे 7 साल से ज्यादा का अपराध हुआ है, जिस अपराध में 7 साल से ज्यादा की सजा की प्रावधान है। इसका मतलब कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल, राइट? बहुत सारे पुलिस फोर्सेस आर आस्किंग नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी। अब ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें उन लोगों को पूछ रहे कि हमारे बहुत सारे, हमें इतने फॉरेंसिक साइंटिस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। सो दे आर आस्किंग, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड in government sector, specifically in government sector. In private sector also, I'll talk about that later on. Then crime laboratory analyst, जो लेबोरेटरी में भेजे गए जितने भी एविडेंसेस है उसका एनालिसिस करने वाले जो है उनको क्राइम लेबोरेटरी एनालिस्ट बोलते हैं। और उसमें कौन से आते हैं? फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फायर आर्म और बैलिस्टिक एक्सपर्ट, टूल मार्क एग्जामिनर, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, ट्रेस एविडेंस एग्जामिनर, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जिसमें मेडिकल एग्जामिनर, जो डॉक्टर्स होते हैं जो बेसिकली फॉरेंसिक मेडिसिन करके हॉस्पिटल्स में रहते हैं, उनका भी इंपॉर्टेंट इसमें है। देन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजी का एनालिसिस करते हैं कि जो एक्सह्यूम बॉडी होती है, मतलब चलो 10 साल के बाद उस बॉडी को निकाला कहीं से और उसके सिर्फ बोन मिले हैं, तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस है उसका एनालिसिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। देन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट, जैसे डेंटिस्ट्री है, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री, हमारे यहाँ पे एमएससी फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री का कोर्स चलता है। सिमिलरली फॉरेंसिक नर्सिंग का भी कोर्स है। तो मतलब जैसे मेडिको लीगल केसेस आ गए, कोई रेप केस हो गया, तो उस टाइम पे जो नर्स होती है उसको फॉरेंसिक का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए नर्सिंग का एक स्पेसिफिक कोर्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जिसमें बीएससी नर्सिंग करने वाली जो लेडीज होती हैं, या तो नर्सिंग करने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब लड़का या लड़की, उन लोगों को उस कोर्स में एडमिशन मिलता है। वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूव्ड कोर्स है ये। तो वैसा यहाँ पे जरूरत पड़ती है। साइबर क्राइम एनालिसिस, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट में, कंप्यूटर साइंस में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सबको यहाँ पे मतलब और उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो भी काफी बढ़िया होता है, काफी अलग होता है। एंटोमोलॉजिस्ट, आपको पता होगा कि जब बॉडी क्राइम सीन पे अगर 3 दिन के बाद अगर आप बॉडी पे के पास जाओगे तो वो सड़ जाती है, उस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब लोग होते हैं। तो उसके एनालिसिस के बेस पे कौन से कीड़े वहां पे है, कौन सा बीटल वहां पे है, कौन सी फ्लाइज वहां पे आती है, उसके बेस पे उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है। मतलब पोस्टमार्टम उसको पीएमआई बोलते हैं, पोस्टमार्टम इंटरवल बोलते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो जो लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, जो लोगों ने टिपिकली लाइफ साइंस पढ़ा है, तो उसमें वो लोग इस पर्टिकुलर एंटोमोलॉजीज, ये डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा, डेवलपमेंट ऑफ द बीटल्स, वो लोग पढ़ते हैं, तो उनकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट, तो आपने लाइट डिटेक्शन टेस्ट, नार्को एनालिसिस, वो सब के बारे में सुना है, तो वो पूरे एनालिसिस इसमें होते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो पॉइजन का एनालिसिस करता है, जैसे किसी को मतलब किसी ने एसिड पी लिया, किसी ने एक पर्टिकुलर ड्रग पी के मर गया, या किसी को पिला दिया और मार दिया, उसमें जो केमिकल एनालिसिस होता है विसेरा का, कि मतलब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, कि जैसे आपके लंग्स है, आपका स्टमक है, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उसका एनालिसिस होता है। तो वो जो एनालिसिस करने वाला जो एक्सपर्ट है वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट है। वैसे बॉटनिस्ट है, अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, ये भी आजकल बहुत ही नया फील्ड मार्केट में है, कि जहां पे ये जो फॉर्जरी होती है अकाउंट्स में, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उसका एक डिटेल्ड कोर्स है हमारे यहाँ पे, एमबीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, जो उसमें ये होता है। फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट, जहां पे सीरोलॉजिस्ट एंड डीएनए, फॉरेंसिक केमिस्ट, फॉरेंसिक डीएनए एनालिस्ट, सिमिलरली डिजिटल फॉरेंसिक, जिसमें मोबाइल फोन आया तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, पेन ड्राइव आई, सीसीटीवी फुटेज आए तो मल्टीमीडिया एक्सपर्ट है। तो ये बहुत सारे फील्ड है जो फॉरेंसिक साइंस में जरूरी है। तो ये सारी वर्किंग प्रोफाइल है फॉरेंसिक साइंस की।
अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ द फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में सुना होगा 2001 में, वो दो ट्विन टावर थे, उनको गिराया गया प्लेन से, वो इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो वहां पे वो ट्विन टावर गिराया गया। वो उसके बाद एक वहां पे बायो टेररिज्म का अटैक हुआ था, आपको याद है इसके बारे में, कभी सुना है? इज देयर एनीबॉडी हु हैज लिसन्ड अबाउट दिस, कि उन्होंने क्या किया था, बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर को लेटर के बाद, मेरा पोस्टडॉक का उसी पर था, बैसिलस एंथ्रेसिस टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम। हाँ, तो वो लेटर भेजे गए थे बहुत सारे ऑफिसर्स को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को। वो दैट वाज अ बायोटेररिज्म अटैक। उस टाइम पे ये लेटर मिला था, ये मैंने जो आपको कॉपी भेजी है वो एक रेफरेंस बुक से मैंने ली है। तो वो जो लेटर भेजा गया था सेनेटर लीही को, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लेटर मिला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस लेटर से कौन कौन से टाइप के फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेटर होते हैं तो आप इस लेटर के बेस पे क्या क्या पता कर सकते थे, वन बाय वन बता सकते हैं आप? कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि क्या क्या इस लेटर के बेस पे, अगर आपके पास ये लेटर होता तो आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, एड्रेस, फिंगरप्रिंट, वेरी नाइस। उसके अलावा स्टैम्प, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां से होती? फॉर एग्जाम्पल पेपर एनालिसिस, वाओ, इंक एनालिसिस, वेरी नाइस, क्या बात है। हैंडराइटिंग, वाओ, ग्रेट। एनीथिंग एल्स मोर? ओके, adhesive, wow, great, right? So आप जस्ट इमेजिन कि ओनली एक सिर्फ लेटर है, उससे क्या क्या कर सकते हैं। सो जस्ट आई एम रिवीलिंग वन बाय वन। You can see that there are almost 10 types of analysis you can do on this letter. Apart from that, दूसरे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो साइबर रिलेटेड जो एनालिसिस, वो तो अलग, राइट? आप इंडेंट एंड राइटिंग मे बी डिपॉजिटेड ऑन पेपर लेफ्ट अंडरनीथ द शीट ऑफ पेपर बीइंग रिटन अपॉन, मतलब अगर इसके ऊपर किसी ने कोई पेपर लिख के लिखा है तो उसका इंडेंट एंड राइटिंग होता है, तो वो पता कर सकते हो। हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन, डीएनए। अब डीएनए कहां से मिल सकता है इस लेटर पे? पहला, जो इस लेटर को, कभी-कभी मोस्टली लेटर को हम सील कैसे करते हैं पता है? हम सलाइवा से करते हैं हमारे, तो वो सलाइवा ये डिपॉजिट हो जाता है और वो इतना इंटैक्ट रहता है कि जब आप उसको निकालते हो तो उसमें से हम डीएनए निकाल के कर सकते हैं। बहुत सारे एनालिसिस इससे हुए हैं और बहुत सारे क्राइम इससे सॉल्व भी हुए हैं। सेलोफेन टेप, अगर टेप यूज हुई है तो वो टेप की क्वालिटी, अगर उस टेप पे दूसरे कोई मार्किंग है तो उससे उसकी कंपनी कहां पे ये मिलती है, ऐसा ग्लू कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ग्लू की केमिकल प्रॉपर्टी से आप ग्लू को मैच कर सकते हैं, राइट? फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस की, इस पे फिंगरप्रिंट्स अगर है तो ये जो स्टैंप है फॉर एग्जांपल, तो ये इसमें इंक जो यूज हुई है स्टैंप में, उस इंक का केमिकल स्ट्रक्चर से काफी सारी इंक जो एक्सक्लूसिव होती है, राइट? आप देख लीजिए कि ये जो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, वो एक्सक्लूसिव इंक्स बनाती है, कि जैसे पार्कर की पेन है तो पार्कर की इंक होगी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, तो उसके बेस पे आप टाइपस्क्रिप्ट एनालिसिस, राइट, कंपैरिजन कर सकते हैं। डीएनए में भी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टैम्प, अगर यहाँ पे स्टैम्प लगा है, राइट, तो स्टैम्प भी आप सलाइवा से लगाते हो कभी-कभी, तो अगर उसमें अगर स्टैम्प है तो उससे भी डीएनए मिलता है और उससे पता कर सकते हैं। और इस केस में उन लोगों ने वैसा किया था और उनको जो डीएनए मिला उससे उन लोगों ने एंसेस्ट्री पता की कि ये डीएनए एग्जैक्टली पर्सन तो पता नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए तो पूरा वर्ल्ड है, कैसे कंपेयर करोगे? तो उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंसेस्ट्री, कि ये पॉपुलेशन से वो बिलोंग करते हैं, इस बंदे ने जिसने भी ये स्टैम्प भेजा है वो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन।
और वैसे भी पता कर सकते हो इवन कहाँ से पोस्ट किया गया था, ये स्टैम्प कौन सी पोस्ट ऑफिस का है, वहां के सीसीटीवी कैमरा. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद दिस लेटर, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एक बंदा एक्सपर्ट ये इस पे काम नहीं कर सकता है. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल वर्क ऑन दिस केस एंड दे विल रिजॉल्व दिस इश्यू. तो पुलिस क्या करेगी कि ये जो लेटर है वो लेटर भेजेगी लेबोरेटरी को, और वो लेबोरेटरी में बैठा हुआ इंसान है वो इस पर्टिकुलर लेटर को दूसरे एंगल से एनालाइज करेंगे एंड वन बाय वन इसका पूरा एक फ्रेम ऑफ वर्क होगा कि दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. एसओपी होगा और उसका एनालिसिस होगा, राइट? उसके एसओपीज होते हैं, उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और उसके बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं वो जिस पे करते हैं. वो जो ये जो फील्ड है उसमें ऐसे मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक एविडेंस का. वैसे तो बहुत सारे एविडेंस क्राइम सीन पे मिलते हैं और एक भी क्राइम सीन यूनिक मतलब सिमिलर नहीं होता है, हर एक क्राइम सीन अलग होता है. तो इसलिए आपको आपके नॉलेज का हमेशा डिटेल में यूज करना होता है कि भाई इसको मैं कैसे एनालाइज करूं और इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूं. तो फिर ऐसा एक्साइटिंग फील्ड है तो उस फील्ड में जाया कैसे जाए, राइट? कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऐसे चलाते हैं जिसमें मेरा ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी प्रोग्राम भी चलते हैं. तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है वेयर आई बिलोंग्स, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी. इसके बारे में आपको बताऊं तो वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस है. आज भी एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेंसिक्स के एक ही जगह पे इतने सारे कोर्सेज चलाती है. मोर देन 70 प्रोग्राम्स आवर यूनिवर्सिटी इज रनिंग. ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. पहले ये गुजरात फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी थी. उसके बाद विद इन अ स्पान ऑफ 10 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल यूनिवर्सिटी बनाया. उतना ही नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया उतना ही नहीं, बट इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी टैग दिया कि जो बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग आईआईटी मिलता है. इट इज द फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी टू हैव एन इंटरनेशनल कैंपस जो युगांडा में सबसे पहले शुरू हुआ. उसके बाद कुछ आईआईटीज ने भी शुरू किया है, लेकिन आवर यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी. अभी हमारे यूनिवर्सिटी के टोटल 9 कैंपस है पूरे इंडिया में. गांधीनगर इज अ हेडक्वार्टर जहां पे मैं यहाँ पे अभी जहां पे बैठा हूं. उसके बाद दिल्ली में है एक हमारा कैंपस, गोवा में है, भोपाल में है, त्रिपुरा में है, गुवाहाटी में है, मणिपुर में है, धारवाड़ में है और पुणे में है. और इसके अलावा और दूसरे मोर देन 10 कैंपस आर अपकमिंग, वो जो भी प्रोसेस में वो आएंगे, राइट? हमारे यहाँ पे 70 से ज्यादा यूजी, पीजी, पीएचडी एंड पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी यूनिक यूनिवर्सिटी. Apart from that, our university is also an investigating university. It means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी यूनिवर्सिटी को गैजेट में पास करके जैसे अगर कोर्ट में कोई रिपोर्ट जाता है, साइंटिफिक रिपोर्ट जाता है, तो कुछ ही लैब्स का वैलिड होता है जो गवर्नमेंट की जो लैब है वो. लेकिन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट भी कोर्ट में अब वैलिड है अंडर 293 सीआरपीसी, सेक्शन 293 सीआरपीसी में. तो एनएफएसयू का असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर एंड दूसरे भी साइंटिफिक ऑफिसर जो परमानेंट है, दे आर एंटाइटल्ड टू रिपोर्ट एनी केसेस. मतलब इसलिए सीबीआई, आईबी, डीआरआई, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो यहाँ पे केस भेज रही है. सो नाउ वी आर अ फोरेंसिक लेबोरेटरी ऑल्सो. तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के काम होते हैं. हमारे यहाँ पे लर्निंग, टीचिंग लर्निंग तो होता ही है, उसके साथ ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड केस वर्क. तो इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसको लाइव एक्सपोजर मिलता है कि केस को कैसे हैंडल करना है. सो दैट इज अ यूनिक फीचर दैट यू विल फाइंड एट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी. तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज. तो उसके बारे में थोड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी दूसरी स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में जो फॉरेंसिक के कोर्स अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में देती है. जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी है जिसको हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी बोलते हैं,
सागर में मध्य प्रदेश में है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है। आई हैव जस्ट गिवन अ फ्यू एग्जांपल। उसके अलावा बहुत सारी एमआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो चलाती है ऐसे फोरेंसिक के कोर्सेज की, जो काफी नोन है। जैन यूनिवर्सिटी है, देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। और हमारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस भी है जो हमसे एफिलिएटेड है, जैसे एनएसआईटी है, नर नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, देन दिल्ली में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है जो ट्रैफिक के रिलेटेड और कुछ फोरेंसिक रिलेटेड कोर्स चलाती है। सो दीज आर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस आल्सो। दूसरा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में यूपी SIFS, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो स्टेट का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है और डेडिकेटेड टू फोरेंसिक साइंस, और दैट इज एफिलिएटेड टू NFSU। वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है that is running under government of UP, so that is also there. अब कौन से टाइप्स के कोर्सेज फोरेंसिक साइंस में होते हैं? तो आफ्टर 12th जो होते हैं वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें बैचलर प्रोग्राम जो हम बोलते हैं। तो जैसे हमारी NFSU की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो कोर्स चलते हैं ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट के, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। मतलब आप इसमें एडमिशन लीजिए और 5 साल तक आपका वो चलेगा कोर्स, एंड इसमें इंटीग्रेटेड मतलब मास्टर तक का प्रोग्राम है। उस बारे में मैं आपको बताता हूं। देन ग्रेजुएशन, मतलब आपके ग्रेजुएशन के बाद कौन से प्रोग्राम है? तो हमारे यहाँ पे 2 टाइप के प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आपने आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने मास्टर प्रोग्राम कर लिया है, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं जो फोरेंसिक ओरिएंटेड रहता है। There are lots of different areas in which you can do the PhD. I will describe about that later on. And दूसरे प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे शुरू किए हैं, that are called career advancement programs. इसका मतलब already you are in a job and you want to enhance your skills and you want to, कभी-कभी क्या होता है, प्रमोशन के लिए भी आपको पर्टिकुलर स्किल सेट जरूरी है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चेंज करवाए हैं। तो अभी हम मतलब NFSU इज अ नोडल एजेंसी टू प्रपोज दिस काइंड ऑफ चेंजेस। तो UPSC भी बहुत सारे अभी फोरेंसिक में जितने भी फोरेंसिक ओरिएंटेड जॉब ओपनिंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें भी काफी सारे बदलाव आएंगे इन नियर फ्यूचर। अभी 1-2 साल में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमने क्या शुरू किया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला बंदा है कि जो अपने फुल टाइम मतलब जॉब में यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे स्वयं वाले हैं। वैसे ही हमारा खुद का पोर्टल है जिसपे आप एनरोल हो सकते हो। आप माइनर उसकी फीस होती है, आप फीस पे कीजिए और वो सेल्फ पेस्ड होते हैं। आपको कभी भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 6 महीने में वो प्रोग्राम आपको कंप्लीट करना है और उसकी ऑनलाइन एग्जाम होती है। उसके अलावा PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे है, वो हम इन जॉब पर्संस को भी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे होते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम जो 6 महीने के, वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डॉग हैंडलर का एक हमारा प्रोग्राम है कि जो फोरेंसिक के जो डॉग्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए टिपिकल प्रोग्राम है। वैसे ही एक हमारा प्रोग्राम है आर्कियोलॉजी के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम की जो 6 महीने का है। तो जो ऑलरेडी आर्कियोलॉजिस्ट है जिनको फोरेंसिक का बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए दे कैन एनरोल। सो ये 4 मेजर मतलब यू कैन से द जगह है, वहां से आप अपना कैरियर फोरेंसिक साइंस में बना सकते हैं। सो दैट वाज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब अगर 12वीं के बाद अगर कोई प्रोग्राम आपको करना है तो उसका लिस्ट आपके सामने ये है, राइट, जिसमें BSc फोरेंसिक साइंस है, BSc MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस है, BSc MSc फोरेंसिक साइंस है, BSc LLB ऑनर्स है और BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अब ये जो प्रोग्राम्स है उसमें साइंस बैकग्राउंड आपको चाहिए, मतलब कंपलसरी आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, तब इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। ये प्रोग्राम मैंने टिपिकली दिए इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम पॉपुलर प्रोग्राम्स है जिसमें बच्चे आफ्टर 12 एडमिशन लेते हैं। और BSc MSc फोरेंसिक साइंस प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है। मतलब करीबन 3000 से 4000 एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आती है हमारे कैंपस के लिए,
जितने भी हमारे 9 कैंपस है उसके लिए। उसके अलावा बीएससी फॉरेंसिक साइंस जो है, जो सिर्फ बीएससी है, तो हमारे यहाँ पे बीएससी फॉरेंसिक साइंस अकेला नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड चलता है। लेकिन बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज है जो ये प्रोग्राम ऑफर करती है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना है आपको, तो हमारी एक नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो एनफेट के नाम से है। तो उसका अभी अनाउंसमेंट हो चुका है। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट nfsu.ac.in और वहां पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और उसके थ्रू उसका सिलेबस भी वहां पे मेंशन है। बेसिकली आपका जो 12th का सिलेबस होता है वही होता है, अपार्ट प्लस थोड़ा सा उसमें ये डिफरेंट होता है, राइट। यस वैद्यनाथ, आपको कुछ पूछना है? वैद्यनाथ झा, आप पूछ सकते हैं। मेरे सर है विद्यानाथ झा, इज रिटायर्ड प्रिंसिपल। ओह सॉरी सर, सॉरी। हाँ सर बताइए। हेलो, हाँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर? नहीं, आप सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, वो गलती से लग गया, गलती से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, सो ये है। और अगर आपको बीटेक एमटेक, ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें भी हम 3000-4000 एप्लीकेशंस एवरी ईयर आती है। तो जिस बच्चों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, मतलब यहाँ पे गुजरात में तो हमारी ग्रुप सिस्टम है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सो ए ग्रुप एंड सी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 क्राइटेरिया है। या तो आपने जेडब्ल्यू दिया है, तो जेडब्ल्यू मेंस के जो आपके 2 अटेम्प्ट्स है, उसमें जो बेस्ट वन होता है उसके बेस पे अगर आपको मतलब उसमें एडमिशन मिल सकता है, या तो आप एनफेट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उसके बाद भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसकी जो सीट्स है उस वैसे डिवाइडेड है कि जेडब्ल्यू से 50%, अभी फाइनल पॉलिसी हमारी अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, तो उसके बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो बीएससी एलएलबी है, ऑनर्स है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड, मतलब इसके अभी फर्स्ट बैच चल रही है। तो जो लोग लॉ में जाना चाहते हैं, कि जो लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बीएससी मतलब साइंस एंड लॉ का मिक्सचर किया है। सो दैट इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम। तो सीरियसली मतलब अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दूसरा है कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम। मैं साइंस का बंदा हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी कैरियर बनानी है क्रिमिनोलॉजी में, मुझे बनानी है एलएलबी में, मुझे बनानी है बीबीए एमबीए में, तो फिर भी आपके लिए ये प्रोग्राम है। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम्स, बीए में क्रिमिनोलॉजी, बीबीए एलएलबी एंड बीबीए एमबीए। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है, होते हैं कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 लोग मेरे जान पहचान के थे कि बीएससी बॉटनी किया, उसके बाद फिर उन्होंने किया एमएससी साइकोलॉजी, राइट। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर आपको आपका पूरा करियर चेंज करना है, अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो इट्स राइट टाइम। तो वैसे आप किया आपने मतलब बी ग्रुप, लेकिन चलो मुझे नहीं डॉक्टर बनना है, मुझे अब लॉ में जाना है, तो यू कैन गो फॉर बीबीए एलएलबी आल्सो, यू कैन गो फॉर बीएससी एलएलबी आल्सो, राइट। तो ये प्रोग्राम है जिससे आप अपना करियर क्रिमिनोलॉजी में, लॉ में, या इवन फोरेंसिक अकाउंटिंग में बना सकते हैं। अगर आप यू आर लविंग मैथमेटिक्स, यू आर लविंग अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, तो उसके लिए भी मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, एंड दैट इज एनफेट, उसके बेस्ड पे एडमिशन होती है। अब प्रोग्राम है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको आपका ओरिएंटेशन की भी नहीं, अब मुझे फोरेंसिक साइंस में जाना है, देन दीज आर द प्रोग्राम्स व्हिच आर प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस बेस्ड प्रोग्राम। फोरेंसिक साइंस हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी जानी जाती है। एमएससी फोरेंसिक साइंस 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर इज डिसर्टेशन, और इसमें हम 6 टाइप के स्पेशलाइजेशन देते हैं। मतलब ये प्रोग्राम ऐसा यूनिक प्रोग्राम है कि जिसमें फर्स्ट ईयर विल बी वेरी कॉमन, मतलब सारे बच्चे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, मतलब जो ये मेडिकल बैकग्राउंड, सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। 1 साल सब लोग कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद 3rd सेमेस्टर में उनको स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन में साइबर फोरेंसिक्स है, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी है, फोरेंसिक फिजिक्स है, फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट है, राइट।
एंड क्राइम सीन मैनेजमेंट है। ऐसे 6 टाइप्स के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइज। यू कैन ऑप्ट एनीवन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर जो पूरा होता है वो एक्सक्लूसिवली वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, राइट। दूसरा हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, देन एमएससी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी इट इज द बेस्ट चॉइस, कि जिससे आप मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं, उसके साथ फोरेंसिक भी पढ़ रहे हैं। मतलब ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ है बेसिकली फॉर कीपिंग द माइंड की डीएनए बिल, मतलब डीएनए अभी जो नए लॉ आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो बायोलॉजिकल एक्सपर्ट होने चाहिए डीएनए में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम को मतलब डिजाइन किया गया है। एंड वी आर रिसीविंग ऑलमोस्ट 200 to 250 एप्लीकेशंस फॉर 20 सीट्स। हमारी इसमें 20 सीट्स है, इस बार हम बढ़ा रहे हैं, 30 सीट्स कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रोग्राम है। बिकॉज ये प्रोग्राम में मैं काफी इन्वॉल्व हूँ, मेरा बैकग्राउंड डीएनए है, सो ये प्रोग्राम। दूसरा है मल्टीमीडिया। आपको पता है कि आजकल 90% ऑफ द क्राइम्स आर सॉल्व्ड बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोरेंसिक्स एंड डिजिटल मीडिया। तो इसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी फुटेज का जो एनालिसिस है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हर जगह सीसीटीवी है, मतलब आपको कोई ना कोई किसी न कोने से देख रहा है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम। टॉक्सिकोलॉजी, आपको पता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, कि वेस्टेरा बहुत सारे, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर गोइंग टू कम। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी फॉर एग्जांपल हर स्टेट में मिनिमम 10 to 20 फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होनी चाहिए। वैसा मैंडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि पिछले नेक्स्ट 10 साल में इतनी सारी लेबोरेटरीज बनने वाली है। अगर ये लेबोरेटरीज बनेगी तो उस लेबोरेटरीज में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। सो हमें मैंडेट है, हमारी यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि आपको हर साल 3000 एक्सपर्ट्स क्रिएट करने हैं, जो हमें नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू कैन डिसाइड योर कैरियर। अगर आप इसके में सही में जाना चाहते हैं, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो इन दिस एरिया। फूड टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि बहुत सारे एडल्ट्रेशंस होते हैं, नकली घी, नकली सब कुछ नकली, आज पूरे वर्ल्ड में सब कुछ नकली मिल रहा है। तो उसको जानने के लिए, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ किट्स व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड, फूड फोरेंसिक्स की जरूरत है। आपको पता है कोई भी बड़ा इंसान होता है, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस प्राइम मिनिस्टर को उनको जो फूड जाता है, तो वो फूड पहले एनालाइज होता है, उनके बाद ही उनको आप दे सकते हैं, राइट। उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है, आप वैसा नहीं दे सकते हो। आपने चॉकलेट दी, पीएम खा ली, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आपको उसमें एक पूरा एक एनालिसिस करने के बाद उनको जाता है। तो वो पूरा जो फोर्स होता है उसमें ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, फूड एक्सपर्ट्स होते हैं, केमिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, और वो सारा एनालाइज करते हैं उनके बाद ही। और उनको एनालिसिस करने की किट्स भी होती हैं, तो वो डेवलप करने के लिए भी R&D की जरूरत है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस एरिया। फोरेंसिक फार्मेसी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आज आपको मैं बताऊं कि गुजरात की नहीं, इंडिया की जितनी भी स्लाइड्स होंगे, बस अब ज्यादा नहीं है। ये मेरा बहुत ही कम, हाँ 15 मिनट है ना हमारे पास अभी, 10 मिनट, राइट। हाँ 10 मिनट है, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी डिस्कशन होंगे इसलिए। हाँ पक्का, ठीक है। तो ये ऐसे एनवायरमेंटल साइंस के, केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो एमटेक साइबर सिक्योरिटी, दीज आर द गोल्डन कोर्सेज, जिसमें आज बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। तो उसमें भी गेट थ्रू और एनफेट थ्रू एडमिशन होता है, राइट। उसके अलावा जो साइंस ग्रेजुएट है, जो दूसरे अलग स्ट्रीम्स भी हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है, होमलैंड सिक्योरिटी है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्रोग्राम, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे समझ लीजिए पोर्ट सिक्योरिटी है, पोर्ट पे सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, संसद भवन की सिक्योरिटी है, तो उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए इसको कोर्स डिजाइन किया गया है। MBA फोरेंसिक अकाउंटिंग, MBA साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सारे प्रोग्राम है जिसमें साइंस ग्रेजुएट भी एडमिशन ले सकते हैं, राइट। ये सारे हमारे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, कि जो कैरियर एडवांसमेंट मेनली प्रोग्राम्स है, DNA, क्राइम सीन, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक्स, ये सुपर स्पेशलाइजेशन समझ लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर डिप्लोमा प्रोग्राम करना है तो इसमें कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी है, कुछ प्रोग्राम्स हाइब्रिड मोड में है, राइट।
और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? तो यहाँ पे दो सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जिस सीबीआई, आईबी, डीएफएसएस, डीआरआई, उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, बहुत सारी है, डीजीजीआई है, ईडी है, तो उसमें सब में आजकल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट? तो ये सारे प्रोग्राम अभी भी जितने भी आरआर चेंज हो रहे हैं, वो सारी पुलिस फोर्सेस ऑफ ऑल द स्टेट्स आर रिक्रूटिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। प्राइवेट सेक्टर्स में भी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अदानी, रिलायंस, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑल आर रिक्रूटिंग फोरेंसिक साइंटिस्ट, क्योंकि उनके बड़े बड़े सेक्टर्स में उनको अपने एसेट्स भी सिक्योर करने होते हैं, उनके इंटरनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी होती हैं, उनको भी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे इंश्योरेंस एजेंसीज है, तो उनको पता करना होता है कि एग्जैक्टली ये क्लेम फॉल्स है या सही है, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है, राइट? सो दिस आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम रियली रिकमेंडिंग कि अगर आपको सीरियसली इंटरेस्ट है फोरेंसिक साइंस में, तो डेफिनेटली एनएफएसयू इज द बेस्ट चॉइस। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके स्टेट में, अगर आप यहाँ पे, एनएफएसयू इज आल्सो कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन उस दूसरे यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं, राइट? सो एनएफएसयू के एडमिशंस लाइव है, आप उस पे लॉग इन करके उसके क्राइटेरिया, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके डेट्स वगैरह उसमें मिलते हैं, आप देख सकते हैं, राइट? सो थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। Thank you very much. Now, participants can ask questions. Bakshi, you can unmute and speak. Seetal, you can speak. Anushka, your mic is working. Pranab Bakshi. Hello. Yes, please ask. Sir, I'm doing my master's in genetic engineering. How can I come in this field, forensic science? Yes, okay. So you can come, right? Any science postgraduate, right? They can apply for a PhD program in forensic science, right? If you have JRF or NET examination, you are exempted from the entrance examination and you will be directly called for the interview, right? So we follow the normal procedure of the PhD admission, which is followed by all state and central universities. So the basic guideline for the PhD admission is that you should have either NET or GATE, or that if you have directly interview, or we have our own entrance examination. You appear that and you clear that examination, and then you will be called for the PhD program. So there is no need to have a basic background in forensic science to get PhD in forensic science. Thank you, sir. Seetal Thakur, unmute करके पूछिए शीतल. Good evening, sir. Good evening, Sheetal. Yes, sir. You know me. I have done my PhD. चेहरा ऑन करोगे तब ना शीतल, आप अपना माइक ऑन करोगे, वीडियो ऑन तब तो. Yes, sir. शीतल, मैं आपको जानता हूँ, राइट? दिव्यानी मैडम के स्टूडेंट है आप, Yes, sir. राइट? हाँ, तो आपका जो पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज का जो ऑप्शन है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी जो वुमेन साइंटिस्ट की जो स्कीम्स आती है, जो पोस्ट डॉक, राइट? सो यू कैन अप्लाई देयर, राइट? बीइंग यहाँ पे मतलब जो पोजीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड डू अंडर मी, बट एनी प्रोफेसर व्हिच इज सूटेबल टू यू, you can contact them, and you can make the NFSU as a host institute for your project, and you can start your postdoc. Yes, sir. मैं वही सोच रही थी कि वुमेन साइंटिस्ट की अभी आ रही है, तो मैं उसमें अप्लाई करूं, बट होस्ट इंस्टीट्यूट में मैं सोच रही थी अगर वहाँ पे कोई चांसेस हो तो. बिल्कुल, हम we will support you in that case. तो वहाँ छोड़ दोगे पढ़ाना आप शीतल? यस सर, थोड़ा रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है. सो बहुत अच्छा है, जाइए भार्गव सर से मिलिए, वहाँ तो पास में डिस्कस करिए. यस सर, डेफिनेटली. हाँ सर. Anushka, you can join. Anushka Kundu, if you have NET JRF, so you can join directly PhD. अभी बताएं ना सर. Actually, I had a question regarding this. The GRF fellowship will be granted by the university, right? Means just I need to qualify for the exam and just present be there in the form of interview. Yeah. So in form of interview, then your interview will be taken, and then if you are selected, then you can activate your fellowship, as a host institute here, and you can may it be CSIR fellowship or maybe UG fellowship, whatever it is. So this is how you can activate your fellowship. Thank you, sir. Yeah. जिग्नेश पटेल जी,
unmute and speak. Okay, what are the chances of getting government jobs in Ahmedabad or Gandhinagar after MSc Forensic Science? Jignesh, right? See, in Gujarat there are 4 forensic science laboratories nowadays, right? Apart from that, new labs will come up. So whatever the posts which are being advertised there, you may be absorbed there. If government of Gujarat is recruiting some police forces for forensic experts, you can have that particular job in that. So this is how in Gujarat specifically. But I'll tell you कि forensic science जब आप consider करते हो ना, तब आप border को भूल जाइएगा, क्योंकि opportunity सिर्फ गुजरात में नहीं होगी. ये opportunity सिर्फ गुजरात में नहीं होगी because it is a universal program. कि जैसे आपने बायोटेक कर लिया तो फार्मा इंडस्ट्री गुजरात में है तो आपको गुजरात में मिल जाता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट आपको फोरेंसिक साइंस में गुजरात में नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर. इसलिए आपको गुजरात के बाहर जाना पड़ेगा, या तो इवन मतलब आपको बिहार भी जाना पड़े, या तो आपको कर्नाटक भी जाना पड़े, दिल्ली भी जाना पड़े, ऐसा हो सकता है. कभी भी जितने लोग एमएससी करते हैं सब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जॉब में, और हमेशा टॉपर के लिए होता है. Right. So, any other question? Sir, if time permits, can I ask one more question? हाँ, Pramod. हाँ बोलिए. Sir, one thing to add to Dr. Sheetal's query regarding the postdoctoral opportunity, she can also go for the NPDF of DST, sir. And I have a related question. Sir, we have very much dedicated funding agencies for research in clinical research, in the life sciences, in chemical sciences as well. But if we exclude all these institutes of national importance, such as NFSU, we don't have much research funding for, like, for example, if I'm working in some other institute and I want to propose a particular research in the field of forensic sciences, we don't have dedicated funding agencies or even external grant. Basically, there is one agency called Director of Forensic Science Services. That is one agency. Another agency is NCRB. Sir, I'm currently working in DFSS project only. Okay. Okay. So that is very specific. That, like, yeah. That is there, right? So that is obviously, that's why I'm telling you, na. So that's why, the forensic field have just, revived in India, right? Since last 10 years. And you can apply also in SERB. No one can stop you if you're. Yes, sir. SCRB is the best platform where you can apply. Even you have that orientation to forensic science, they will also give you. प्रमोद जी चाह रहे हैं कि इन एक्सक्लूसिव भी हो फोरेंसिक साइंस का और नॉर्मल में भी हो. No, sir. It's sir also sir the research. आपकी बात सही है. देते हैं अगर आपको the salary is good, but the money for research is very low. Like in 2-3 lakhs per annum. There is scarcity of fund. Whatever number of students are coming, no one can say that there is sufficient availability of resources everywhere. Yes, sir. आप IIT में जाओगे तो वो भी रोना रोते हैं कि है नहीं. And you can see कि private university even they don't have sufficient faculty. छोड़ दीजिए practical के लिए. Yes, sir. Right. हमने JNU 8 साल बिताया, वहाँ भी रोना रोते थे फैकल्टी. आप समझ सकते हो JNU जैसे जगह कि अरे नहीं दे रहा है, LR का 15,000 रुपए सिर्फ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं. Are you getting my point? Definitely, yes. Even हार्वर्ड में जो रहे हैं हमारे बहुत सारे बोलते R1 ग्रांट होता है, वो इस बार नहीं मिला, इसलिए हमको हटना पड़ेगा. Are you getting? वो भी competitive. That must be competitive, है ना? Yes, sir. Yes. हम तो बोले हर जगह टेम्पोररी फैकल्टी जैसे टेन्योर ट्रैक होता है करना चाहिए. बिल्कुल राइट सर, राइट. नहीं तो बहुत सारे लोग जो क्या है कि नया जो यंग है 5-7 साल किया फिर उसके बाद काम ही नहीं करते हैं, 30 साल तक बैठ के खाते हैं. समझ रहे हो आप? Yes, if you will see the accountability of permanent faculty, it's very you can say कि not satisfactory. नहीं बिल्कुल. I fully agree with Gopal ji, right? And because of that only, the mindset of the funding agencies are so typical, क्योंकि मतलब फंड यूटिलाइज होता है तो उसका लेकिन आउटकम जो आता है ना, आउटकम इज नॉट देयर एट ऑल. उसका इसलिए फिर वो लोग क्या करते हैं, फंड देने का मतलब क्या है, राइट? दिस इज हाउ, मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए. यस सर, एग्जैक्टली.
Anybody have any question or suggestion? You can share. Otherwise, I request Vidyanatha Jha sir to share his feedback because he has more than 30 years, 40 years of teaching experience. He has served more than 20 years as a principal in different colleges. Sir, are you listening, sir? Professor Vidyanatha Jha, आप हैं? हाँ है हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई पड़ रहा है? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ये very vivid, lively experience it was hearing Dr. Bhargav on the prospects of forensic science in our country. कैमरा सर ठीक है सर, ठीक थोड़ा नीचे कर लीजिए, कैमरा सामने ही है आपका, आप ऊपर सर उठाए थोड़ा नीचे। ठीक जी ठीक है। तो मैं तो अब रिटायर्ड हूँ, लेकिन गोपाल जी हमारे स्टूडेंट हैं और जिन दिनों ये पढ़ते थे कॉलेज में उन दिनों भी he had a craze for these things. Of course at that time it was for himself, but today he is thinking for horde of students all over the country and even abroad. तो ये कर रहे हैं relentlessly. He is doing it relentlessly, और thousands of students are getting benefited from his efforts, through his efforts. और ये जो आज फोरेंसिक साइंस के विषय में जो नाम तो हम लोगों ने भी सुन रखा है काफी समय से, लेकिन अब तो जो दुनिया बढ़ रही है आगे और नॉलेज का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, तो थीम्स, सब थीम्स, डिसिप्लिन्स, सब डिसिप्लिन्स आर नाउ इमर्जिंग एज न्यू डिसिप्लिन्स, और इतना इंफॉर्मेशन जमा हो रहा है कि नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो फोरेंसिक साइंस का भी इतना डायमेंशन है वो समझ में आया, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इनमें बन रही हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी इनमें बन रही हैं। तो आज का जो जनरेशन है उनको इससे परिचित होना बहुत जरूरी है, और फॉर्मल लेवल पे जो प्रयास हो रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन इस तरह के जो इनफॉर्मल जो हमारे एफर्ट्स हैं ये भी होने चाहिए। दीज आर ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम, और इसको ये जो एक गैप है उसको आप भर रहे हैं। और आज के जो स्पीकर थे हमने देखा उनका मल्टी डायमेंशनल जो स्पिरिट है, खास करके नए जनरेशन को, नए ब्लड को अट्रैक्ट करने में जो कुछ भी वो सोचते हैं वो उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली इसमें अपने डिस्कोर्स में आज किया। मैं आउट ऑफ दिस शेयर इंटरेस्ट, मैं अभी तक इससे जुड़ा हुआ था, केवल उनको मैं सुन रहा था किस तरह से टैलेंट इज अट्रैक्टेड खास करके, और किस तरह से उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को समझाया है। मैं समझता हूं कि ये डिसिप्लिन के लिए भी एक जो जस्टिस है, जो आप न्याय है अपने डिसिप्लिन के साथ, वो भी आपने किया है, और लोगों के लिए जो आपने अपॉर्चुनिटीज खोली हैं, समझाने की कोशिश की है, वो तो है ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर को भी देता हूं, और आज के जो स्पीकर थे उनके लिए भी हमारा बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और गोपाल जी के आप गुरुजी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बीएससी सर के अंडर में पढ़ा है, मेरा भी बॉटनी था बीएससी सर। बढ़िया। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मतलब आपके आशीर्वाद भी मिल जाएंगे इस तरीके से। नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और गोपाल जी ने मतलब हमारे गुजरात में जो कार्य क्षेत्र बनाया है ना, तो मतलब बहुत अच्छा किए हैं वो। नहीं वो तो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। वरना वो जेएनयू के बाद कहीं और पोस्ट डॉक के लिए और कहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में लिया, और वहां पे भी मतलब पूरे सबको इतना। हाँ, लाइफ का एक पर्पस होता है। लोग जब पर्पस समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, फिर वो डायरेक्शन पकड़ लेते हैं अपना, वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। जनरली आप साइंस डायलॉग सीरीज में ऑल स्पीकर्स आर कमिंग थ्रू माय ओन रिक्वेस्ट नेटवर्क विदाउट expecting any money, anything. So that is also thankful to all the resources. Knowledge grows this way. Devoted persons जो होते हैं उन्हीं से दुनिया चलती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एकेडमिक डिसिप्लिन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। चाहते हैं कि बच्चे आंख मूंद के कहीं नहीं जाए। They should take decision, informed decision हो, अपना compare करे। So we invite different streams speakers. And then आप डिसाइड करो क्या बेहतर है आपके लिए, क्या स्टेमिना है आपके लिए, कितना कर सकते हो। दैट इज पर्पस।
क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन है ना, अनयूटिलाइज्ड पॉपुलेशन. So how can we improve our all human resource quality? That is purpose, sir. Yes. Right. Any other participants can share your view, your feedback. If there is no more feedback, then Hello? Yes, Sally Thakur. Yeah, I am Shelly and I am the student of Dr. Bhargav Patel, sir. Hello, sir. Hello, Yes, Sally. hello, Sally. Nice to hear you, sir. Always waiting for such a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you so much, Gopal, sir, for organizing this session. Yes, keep in touch. Join on my social sites so that you will come to know about different streams of biology. And you can Definitely, sir. utilize. Definitely. As you know, background of Bhargav, sir, he Yeah. jumped after PhD. He has jumped in forensic science. Anna? Yes. Everybody can join. Yes. He's a great person. I know him very well. Yes. So people are generally confused कि सर माइक्रो किए तो बायोटेक में जाएंगे कि नहीं, बायोटेक किए तो फोरेंसिक में जाएंगे कि नहीं. All these things. That's why this lecture is also important. कि Dr. Bhargav Patel has done his MSc and PhD in biotechnology and directly has joined as a faculty here in forensic science. बिकॉज जब मैंने ये फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मेरा फोरेंसिक का बैकग्राउंड जीरो था. Yes. मतलब आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ फोरेंसिक साइंस. बट यहाँ पे 13 मतलब मेरे 11 साल हो गए यहाँ पे. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट को मैंने अपना रिसर्च थर्स्ट एरिया बनाया. इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 7 years टू एस्टैब्लिश दैट फील्ड. मतलब उस फील्ड को जानने के लिए तो मतलब कोई भी साइंस का कोई भी छोटा सा भी फील्ड पकड़ लो ना, उसको जानने के लिए आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी. राइट. तो ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी भी मुझे इतना आता नहीं है. बहुत ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है सब. सो थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड सर आपको ज्वाइन करने के लिए भी थैंक यू एंड भार्गव जी को तो थैंक यू है ही. Yes, so I request all of you to write your feedback in Google form also I have shared, and you also join on LinkedIn and Twitter so that in other stream of biology you will come to know about other streams. So please. Thank you Aditya. I think we all are connected. Milind, Aditya, हम लोग connected है ना कहीं? Yes. So thank you and good night everybody. Good night.